Okay, so last time we studied about Agni missile systems from Agni 1 to Agni 5. The most recent one was Agni 5 MIRV. MIRV was which can drop multiple bombs or multiple payloads to different targets at a single launch. It was recently used, so it becomes important. So it was the most important missile system of India, that is Agni, because based on the Agni platforms, several other technologies like the MIRV technology will be studied. Okay, so next we will move on to से पहले let's see some previous year questions. As is the tradition, which one of the following is the best description of INS Ashtadharini that was in the news recently? Recently, it is a 2016 question, so it won't matter to us now. लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसका सिग्निफिकेंस यही है कि व्हेन यू आर रीडिंग द करंट न्यूज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिप्शन अगर कोई न्यूज में दिया है कि दिस INS, the new INS has been inducted into the Navy or the Flight Services Command, तो उसकी थोड़ी सी qualities, what does it mean, वो क्या करेगा, what new qualities will it provide, उसका successor या predecessor क्या होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी. दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम 2016. ठीक है, थोड़ी सी डिटेल्स हमने यहीं पे ऐड कर दी है. In the Navy's first totally indigenously designed and built torpedo launch and recovery vessel. अब लॉन्च एंड रिकवरी वेसल क्या होता है? लॉन्च तो हम समझते हैं कि मिसाइल को लॉन्च करना सिंपली, बट होता है क्या है कि व्हेन इंडियन नेवल शिप्स दे प्रैक्टिस with missiles, so those missiles will not blow in the sea, so those missiles need to be recovered. To recover those missiles, some vessels are used. So the new vessel is INS Ashtadharini. Before that, it was INS Astravahini, which sunk in the sea. That's why a new INS was created, that is INS Astravahini. क्योंकि वो सिंक हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें एक बेटर वेसल की जरूरत पड़ी और बेटर वेसल was INS Astravahini. The design of the Astravahini was collaborative effort of NSTL, स्टॉप शिपयार्ड एंड IIT खड़गपुर. NSTL क्या है? DRDO का एक और सब्सिडरी है, इज नोन एज नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी. तो जब भी हम डिफेंस की बात करेंगे तो DRDO विल बी इन्वॉल्व. ओके, जैसे कि स्पेस के लिए इसरो है तो डिफेंस के लिए DRDO है. ओके, as a unit design of catamaran hull form that significantly reduces its power. Catamaran hull ये टर्म आ रहा है, तो टर्म को बस ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए दो शिप के बीच में आपने एक प्लैंक रख दिया. ठीक है, एक सिंगल शिप है तो वो हल उसी को कहते हैं, तो वो कैटमैरन हल होता है. वो थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है शिप को, इसलिए बेटर है. ओके, एक PYQ हो गया. फिर एक आता है इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन रीन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके, 2015 का क्वेश्चन है, बट इंडियन ओशन रीन एसोसिएशन जो भी है वो अभी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एस्केलेशन ऑफ टेंशंस विद चाइना, स्पेशली विद चाइना in the Indian Ocean and in the South China Sea. जब भी टेंशन एस्केलेट होगी तो दो मेथड्स होंगे, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस. हमें डिफेंस को मजबूत करने के लिए तो हम अंदर से मिसाइल प्रोग्राम्स, शिप्स एंड अपनी फ्लाई सर्विसेज कमांड, इन सबको मजबूत करेंगे. बट अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए हमारे पास ऐसी एसोसिएशन ही काम आती है. सो इट इज एन इम्पोर्टेंट एसोसिएशन. It was established very recently in response to incidents of piracy and accidents of oil spills. It is an alliance for maritime security. This is all the question. तो इसका जो objectives हैं are far more complex हैं. There are multiple objectives of this Indian Ocean Rim Association. तो सिर्फ security नहीं है, and it was not developed in response to incidents of piracy. It was established in March 1997 when member states work on various initiatives like trade, investment and sustainable development. तो सिर्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए भी और मैरिटाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इंडियन ओशियन एसोसिएशन है काम होता है. ओके, मेंबर कंट्रीज करंटली 23 है और 10 डायलॉग पार्टनर्स हैं. तो 23 में मेजर कंट्रीज तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं. इंडिया है ही,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट की भी हम बात करें तो ईरान और यूएई है। ओके, साउथ अफ्रीका भी है। तो इंडियन ओशन कहाँ तक जाता है? साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक। तो उसकी जो जो कंट्रीज होंगी ओशन के रेंज में, उसमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो है, इधर साउथ साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पार्ट हो जाते हैं। और मेजर कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए, जापान, ये सारी क्या है, डायलॉग पार्टनर्स है, दीज आर नॉट फुल टाइम मेंबर्स। ओके, इवन जर्मनी, these are dialogue partners, not full-time members of Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. ठीक है, ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन भी 2008 का क्वेश्चन था, जस्ट टू एक्सप्लेन की व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। डायरेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं। कि हैंड इन हैंड 2007 is a joint anti-terrorism military training was held by officers of the Indian Army and officers of Army of which of the following countries? China, Japan, Russia, and USA. So hand in hand was held with India and China in 2007. ठीक है, इंडिया एंड चाइना का था, तो वो अभी रेलिवेंट नहीं है, बट रेलिवेंट को हम अभी देखते हैं। रेलिवेंट की एक टेबल मैंने बना दी है, तो पीडीएफ भेजूंगा, उसमें याद कर लूँ। ये रिसेंट वाले की मैंने इंक्लूड किए हैं, बिकॉज रिसेंट वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो मिलिट्री है, ये है बायोलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज ही हैं, जो रीजन में 2023 या एंड ऑफ 2022 में हुई है। बोर्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर, इक्वेटोरियल मालदीव्स, गरुड़ शक्ति, इंडोनेशिया। ठीक है, जब इसके आपको एक निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे याद करने के लिए, कि कैसे हमें याद किया जाए, थोड़ा सा रिलेटेबल। के किर्गिस्तान है, फिर वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, फिर तो कजाकिस्तान भी आ रहा है नेक्स्ट में, तो के कैसे करेंगे। फिर प्रबल दोस्तीक, कजाकिस्तान, सूर्य किरण, नेपाल, युद्ध अभ्यास है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हो जाता है। युद्ध अभ्यास सिंपली लुक्स लाइक कि इसका जो नाम है उसमें, अगर आपको बिना, आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, और ऐसे ऑप्शंस में दे दी जाए गेस करने के लिए, तो युद्ध अभ्यास में लगेगा नहीं, यूएस का नाम माइंड में आएगा ही, बिकॉज द नेम इज इन हिंदी। सो विल थिंक यार युद्ध अभ्यास में कोई क्लोज कंट्री होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, भूटान होगा, ऐसी कंट्री से अगर ऑप्शन में नाम आया तो यू मार्क दैट। तो इसलिए ये जो अलग से हैं, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, निमोनिक्स अपने अपने बनाने पड़े, बस तभी अपनी जो भी याद करने की टेक्निक्स है उनके थ्रू याद तो करने पड़ते हैं, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और सिर्फ एक ही बार में कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ऑफ मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज जो रिसेंट में होती है, दैट यू हैव टू गो थ्रू करंट अफेयर्स, एंड थ्रू करंट अफेयर्स यू हैव टू रिमेम्बर, तो रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, वो था। अब देखिए 2018 का क्वेश्चन, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, इट वाज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम हार्ड। ये क्वेश्चन ऐसे ही करंट करंट में और भी क्या होगा, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगे डिफेंस सेक्टर, मेजर डेवलपमेंट्स होंगे वो न्यूज में आएंगे। तो नॉट नॉट ओनली इंडिया, जब फॉरेन नेशनल्स के पूछा रेलिवेंट फॉर इंडिया और इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, लाइक अगर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी नेबरिंग कंट्रीज का, तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। इवन श्रीलंका एंड मालदीव्स, बिकॉज ऑफ द रिसेंट टेंशन विद मालदीव्स, अगर मालदीव्स में भी ऐसा तो कोई मेजर डेवलपमेंट्स होने नहीं है डिफेंस के सेक्टर में, इट इज अ स्मॉल कंट्री। बट अगर चाइना का इंटरफेरेंस होता है, चाइना कुछ वहां पे प्लेस करती है अपनी कोई नेवल फ्लीट, या फिर अपने कोई नया एयरपोर्ट बनाती है वहां पे, एयरफील्ड बनाती है, तो भी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, तो इट वाज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम था। इजरायली एयर, अभी बताएंगे कौन कौन क्या नाम होता है इजरायली एयर, आयरन डोम बोलते हैं उसको। इंडिया का जो इंडिया एंटी मिसाइल प्रोग्राम विल स्टडी इन दिस लेक्चर। ठीक है, डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये सब ऑप्शंस के एनालिसिस हैं, बाकी ऑप्शन आंसर जो है सी है। हार्ड, हार्ड मतलब यूएस। लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट अग्नि मिसाइल सिस्टम्स, अग्नि हमने अग्नि 1 टू अग्नि 5। इंपॉर्टेंट वाज कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स गो थ्रू आफ्टर एटमॉस्फेयर एंड दे आर मोस्टली लॉन्ग रेंज मिसाइल। ठीक है, शॉर्ट टू लॉन्ग रेंज, बट
अब हमने वो तो डेवलप कर ली, लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। नाउ वी आल्सो नीड क्रूज मिसाइल सिस्टम टू डिफीट दी राडार्स। और दूसरा, अगर हमें प्लेन से लॉन्च करना है तो बैलिस्टिक से काम नहीं चलेगा। अगर एयर टू एयर डिफेंस चाहिए तो बैलिस्टिक से कैसे काम चलेगा, क्रूज मिसाइल चाहिए। ठीक है, अगर हमें प्लेन से प्लेन को उड़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है ब्रह्मोस, नेम्ड आफ्टर ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया एंड मॉस्को रिवर ऑफ रशिया। तो इंडिया एंड रशिया का कोलैबोरेशन। ठीक है, ब्रह्मोस एक कोलैबोरेटिव एक इंस्टीट्यूशन ही बना दिया गया है ब्रह्मोस का। ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। सुपरसोनिक यानी अप टू 5 मार्क। ठीक है, उसके बाद हाइपरसोनिक होती है, हाइपरसोनिक स्पीड। तो 5 मार्क तक की स्पीड तक जो है वो है न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम सेवरल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग एयर, सी एंड लैंड। तो ये इसका एडवांटेज है कि एयर यानी कि हम प्लेन में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, सी शिप्स के थ्रू, इवन सबमरीन्स के थ्रू, सबमरीन्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और लैंड पे तो है ही, सरफेस टू सरफेस। This is capable of traveling speed up to 5 Mach 3 and it is one of the world's fastest cruise missiles. Okay. It comes among one of the fastest cruise missiles. ये ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, ये जॉइंट वेंचर तो एक इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट कर दिया, सिर्फ मिसाइल ही नहीं है, जो जॉइंट कोलैबोरेशन में इंस्टीट्यूशन ही है ब्रह्मोस एरोस्पेस, जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया का। क्या होगा, इंडिया का डीआरडीओ है, रशिया का एनपीओएम बोलते हैं, एमपीओ एनपीओएम या ये नाम मशीन वाइज को नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नाम एनपीओएम रशिया का। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी में आ गया, सुपरसोनिक स्पीड इज सुपरसोनिक एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल मतलब कि ये आउट एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इट वर्क्स विद इन द एटमॉस्फेयर। टू स्टेज मिसाइल विद अ सॉल्ट propellant booster engine that propels it to supersonic speed before settling. Whenever we learn about missiles, we think कि सारे मिसाइल जैसे ही रिलीज करते हैं पूरी मिसाइल वहां तक टारगेट तक जाएगी, बट इसलिए क्या, तो रॉकेट्स आर यूज्ड टू कैरी द पेलोड्स। यहाँ पे इस केस में, मिसाइल के केस में पेलोड क्या होता है, बॉम्ब्स होते हैं। तो दे विल सेपरेट इन द मिडिल स्टेज। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी मल्टीपल स्टेजेस, इवन जो बॉम्ब के लिए जो मिसाइल यूज किया है उसमें भी मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च के लिए भी इसमें भी मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड गाइडेंस सिस्टम विद एडवांस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। अब मोस्ट जो इसका एडवांटेज है या इसका डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, टू बी अनडिटेक्टेबल फ्रॉम दी रडार सिस्टम। अगर डिटेक्ट हो जाए तो एंटी मिसाइल सिस्टम, सिविल डिफेंस सिस्टम से किसी भी कंट्री के उन्हें सिंपली इनइफेक्टिव कर देगा। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। फायर एंड फॉरगेट, वही सेम थियरी, फायर एंड फॉरगेट कि बस एक बार लॉन्च कर दिया उसके बाद आपको सोचना नहीं, डायरेक्ट टारगेट पे हिट करेगा। हाई सुपरसोनिक स्पीड एंड इट्स रेंज जो है 290 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये इंटरकॉन्टिनेंटल और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्लोज इसीलिए मोस्टली कहाँ प्लेस होनी है, बॉर्डर एरियाज में। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम विद नेवल फ्रिगेट्स, अपने शिप के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, या अपने फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, एयर टू एयर डिफेंस के लिए, शिप टू लैंड डिफेंस के लिए, लैंड टू लैंड डिफेंस के लिए। तो मल्टीपर्पज है, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म्स में एम्बेड की जा सकती है। ओके, ब्रह्मोस का ये एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अग्नि मिसाइल सिस्टम। तो ब्रह्मोस फर्स्ट जनरेशन था, नेक्स्ट जनरेशन में बस इंप्रूवमेंट दिखेंगे, किसकी भी रेंज वही है, बट ब्रह्मोस एनजी में क्या हुआ है, स्पीड जो है उसकी बढ़ी है। अप टू 3 था, इट इज अप टू 3.5 मार्क। ठीक है, इट हैज स्मॉल साइज, सो ब्रह्मोस एनजी जो है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन टॉर्पीडो, सबमरीन के थ्रू भी लॉन्च की जा सकती है। फर्स्ट जो ब्रह्मोस है, इट कैन नॉट बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, बट ब्रह्मोस एनजी कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन। अब ब्रह्मोस 2, अब ब्रह्मोस मार्क 2। ठीक है, इसका भी रिसेंटली टेस्ट हुआ था, रिसेंटली मतलब 2021-22 की बात है, नॉट 23-24, बट इट इज अ हाइपरसोनिक मिसाइल। जब हम हाइपरसोनिक बोलते हैं तो इसका मतलब इट कैन क्रॉस द स्पीड ऑफ माक 5। माक 5 से बाहर आते ही हाइपरसोनिक स्पीड। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंज क्या है इसकी, ओवर 480 किलोमीटर और 300 माइल्स, स्पीड्स अप टू मार्क 7। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म लैंड, एयर एंड सी तीनों में यूज हो सकती है।
अभी स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के हम बारे में हमने पढ़ा था। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी भी स्टडीड ड्यूरिंग जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 1 मार्क 2। ठीक है, तो स्क्रैमजेट तो इसलिए कभी भी देखोगे डीआरडीओ और इसरो के कोलैब में कोलैबोरेशंस होते हैं। ठीक है, इवन इसरो कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू डीआरडीओ फॉर their missile development, and DRDO can provide the technology to ISRO for their rocket development, satellite launch vehicles। ठीक है, तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है? स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बताया था मैंने, इग्निशन एयर में, एयर को ही एज ए ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं, ताकि जो हम उसमें फ्यूल डाल रहे हैं, सॉलिड फ्यूल लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट को, उसे उसमें ऑक्सीडाइजर्स की रिक्वायरमेंट कम हो, तो स्टैंडर्ड इंजन के थ्रू एयर को ही एज ए ऑक्सीडाइजर और एक कंबशन फ्यूल, कंबशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, और स्क्रैमजेट से दूसरा मेन एडवांटेज क्या है कि हम मैन्यूवर कर सकते हैं। मैन्यूवर मतलब अगर हम उसमें स्क्रैमजेट के थ्रू फ्यूल की क्वांटिटी को थ्रॉटल कर देते हैं, फ्यूल की क्वांटिटी को मैनेज करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते, स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इससे क्या एडवांटेज मिल जाता है जो हमें नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं मिलता था, कि हम उसे एक बार हमने लॉन्च कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, एक ट्रेजेक्ट्री है, उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। बट इस वेपन में क्या है कि वी कैन चेंज द ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो जैसे ही आपका टारगेट मूव करता है तो वी कैन ऑल्सो मूव दी आवर ब्रह्मोस मार्क 2 मिसाइल। ठीक है, उसकी भी हम ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि ऑल थ्री डिफेंस सर्विसेज विल यूटिलाइज दिस वेपन। ठीक है, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए ये यूजफुल है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड, या भी हम वैसे सुखोई में इंटीग्रेट करते थे, बट तेजस जो अपना इंडिजिनस है, तेजस में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अब हमने जब अग्नि पढ़ी थी तो अग्नि शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था। ओके, अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी फर्दर की एक एडवांस स्टेज है अग्नि का। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल थी, उसमें मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। अगर आप मैन्यूवर नहीं कर सकते हो तो टारगेट एक बार आपने लॉन्च कर दिया तो उसी टारगेट पे हिट करेगा। तो पृथ्वी को एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तरह डेवलप किया गया। ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज। देखिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि बैलिस्टिक थी, पृथ्वी भी बैलिस्टिक है। ब्रह्मोस जो थी, ओनली ब्रह्मोस वाज अ क्रूज मिसाइल, सिंगल स्टेज लिक्विड, इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट। अभी तक हमने लिक्विड प्रोपेलेंट किसी में भी नहीं देखा, लिक्विड फ्यूल पृथ्वी में यूज हो रहा है। ओके, तो ये डिफरेंसेस है अग्नि से। लिक्विड फ्यूल यूज हो रहा है, वेरी शॉर्ट रेंज है, 150 किलोमीटर की है पृथ्वी वन की। पृथ्वी वन प्रोग्राम हैज बिन अबैंडन, अभी पृथ्वी वन यूज में नहीं आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पृथ्वी की प्रेडेसेसर है, इसलिए पृथ्वी वन की भी जब न्यूक्लियर केपेबल थी 150 किलोमीटर की रेंज। नाउ पृथ्वी टू। ठीक है, पृथ्वी टू जो है वो रिसेंटली टेस्ट की है, 2022-23 की बात है। इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बाकी आईसीबीएम की तरह, बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज कंपैरेटिवली पृथ्वी वन से काफी ज्यादा है। इट हैज अ रेंज ऑफ अराउंड 350 किलोमीटर्स, एंड इट कैन कैरी 500 to 1000 kgs, या 1 टन तक वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। इसका डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द बैलिस्टिक मिसाइल, इट कैन मैन्यूवर इट्स ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी चेंज की जा सकती है इफ इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ मैन्यूवरिंग द ट्रैजेक्टरी। इसका मतलब क्या है कि हम इसे एयर डिफेंस में यूज कर सकते हैं। एयर डिफेंस की मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि टू मैन्यूवर द ट्रैजेक्टरी अकॉर्डिंग टू द टारगेट। अगर इंडिया पे कोई मिसाइल लॉन्च की जाती है, ठीक है, अगर वो मिसाइल अपनी ट्रैजेक्टरी मैन्यूवर कर सकती है, वो हवा में अपनी रास्ता बदल सकती है, तो जो डिफेंस सिस्टम है जो उसे खत्म करेगा, उस डिफेंस सिस्टम को में भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी उसके अकॉर्डिंग अपने पाथ को मैन्यूवर कर सकते। सो फॉर दैट पृथ्वी टू वाज डेवलप्ड। इट यूजेस एन एडवांस्ड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम विद द मैन्यूवरिंग ट्रैजेक्टरी टू हिट इट्स टारगेट विद प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, सो इट वाज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, क्योंकि हर किसी में डीआरडीओ तो आएगा ही, अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये सब डिफेंस, पृथ्वी, अग्नि, ये सब क्या है? आईजीएम, आईजीडीएपी के पार्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है,
अब पृथ्वी 2 ही जो है उसी को प्रहार मिसाइल भी कहते हैं, उसी का एक वर्जन है प्रहार मिसाइल। दीज आर ऑल्सो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। टैक्टिकल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, क्या शॉर्ट रेंज में जो भी आप काम करते हो वो टैक्टिकल हो जाएगा। शॉर्ट रेंज एक स्पेसिफिक एरिया, तो इट इज अ टैक्टिकल मूव। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज एज कंपेयर टू पृथ्वी इट इज सॉलिड फ्यूल। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाई, और बाकी चीजें सेम सेम है। इट हैज ऑपरेशनल रेंज ऑफ 150 किलोमीटर एंड फ्लाइट एल्टीट्यूड ऑफ 35 किलोमीटर। अब रेंज और एल्टीट्यूड में क्या फर्क हुआ कि इट कैन, एल्टीट्यूड हाइट की बात होती है। ये जो क्रूज मिसाइल्स मोस्टली होती हैं, क्रूज मिसाइल तो नियर द सरफेस भी ट्रैवल कर सकती हैं विद इन सम मीटर्स ऑफ द सरफेस। बट बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल हैज टू पाथ हैज टू ट्रैवल अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। तो पैराबोलिक का मतलब है कि पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ओके, उसका जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है इट कैन रीच अप टू 35 किलोमीटर। और रेंज, मैक्सिमम रेंज इज 150 किलोमीटर। और इसकी एडवांटेज क्या है, इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स weighing around 200 kg। अभी मल्टीपल टाइप्स में न्यूक्लियर भी आ जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल वॉरहेड्स का, और वही सेम एडवांटेज जुपिटर वाले भी होंगे कि इसमें भी मैन्यूवरिंग टेक्नोलॉजी होगी, अ लिटिल बिट एडवांस फ्रॉम पृथ्वी 2। ठीक है, प्रहार के बाद क्या आता है, प्रलय। ठीक है, तो नाम ऐसे काफी फिल्मी नाम लग रहे हैं, प्रहार, प्रलय, पृथ्वी, अग्नि। ओके, तो इनके डिफरेंसेस क्या देखना, देखो फिर से हम बैक टू अग्नि जाते हैं। अग्नि सिंपल है, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक में तो है, बैलिस्टिक हो गई। क्रूज में आते हैं, क्रूज इज ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। फिर हम वापस आते हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी पे आते हैं फिर से हमारा बैलिस्टिक होता है। बस बैलिस्टिक, पृथ्वी जो है शॉर्ट रेंज है, अग्नि जो है ज्यादा दूर तक फैल जाती है। ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो वो अग्नि की रहेगी। ओके, और किसी कैटेगरी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। प्रलय, प्रहार पृथ्वी जो था, पृथ्वी के बाद डेवलप हुआ प्रहार, प्रहार के बाद प्रलय। इंडिया फर्स्ट कन्वेंशन पॉसिबलिस्टिक मिसाइल। पॉसिबलिस्टिक पहले तो वही सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, बट आफ्टर दैट इट कैन मैन्यूवर, ठीक है, रास्ते में अपनी ट्रेजेक्टरी बदल सकता है। ठीक है, तो इसको मल्टी स्टेज होगा, तो सेकंड स्टेज में हो सकता है स्टैंडर्ड इंजन लगा दिया जाए इसमें भी, ताकि अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सके। तो बैलिस्टिक का, सिंपल बैलिस्टिक का मतलब है बस एक बार लॉन्च करके सीधा टारगेट पे एक पैराबोलिक पाथ पे जाके हिट करेगा। बट पॉसिबलिस्टिक में आधे रास्ते में जाके अपनी ट्रेजेक्टरी बदल भी सकते हैं। एज a low trajectory, and while it is largely ballistic, it can maneuver in flight. The missile has been developed in a way that it is able to defeat the interceptor missiles and also has the ability to change its path after covering a certain range mid-air. ठीक है, इसका भी सेम सॉलिड, पृथ्वी में ही हमने लिक्विड प्रोपेलेंट देखा था, बाकी सभी में हम सॉलिड प्रोपेलेंट। तो देखो प्रोपेलेंट एंड बॉम्ब्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, रॉकेट यूज कर रहे हैं हम, उसमें उसमें बॉम्ब को अटैच कर रहे हैं। ओके, रॉकेट जैसे सिंपल सी चीज है, सेम रॉकेट से एक से सैटेलाइट भेजते हैं, एक से बॉम्ब भेजते हैं, तो दोनों में फ्यूल्स यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें इसके रॉकेट्स में क्या यूज हो रहा है, सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। ठीक है, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम इंक्लूड स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, एवियोनिक्स क्या है, वही फ्लाइट एविएशन जानते हैं, वही एवियोनिक्स कैसे फ्लाई करता है उसी को एवियोनिक्स बोलते हैं। बेटर है, तो इट हैज अ रेंज ऑफ 150 टू 500 किलोमीटर। ठीक है, ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक है, बट फोर से बैलिस्टिक है। मिड एयर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। पहले धनुष, अब इसी को अगर हम शिप से लॉन्च करते हैं तो धनुष हो जाता है। ठीक है, सिंपल सेम मिसाइल, इट लॉन्च फ्रॉम शिप। शिप के लिए हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, ये शिप का प्लेटफॉर्म यूज करके हमें लॉन्च करना। शॉर्ट रेंज शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज द थर्ड वेरिएंट ऑफ द पृथ्वी मिसाइल फैमिली। इसकी स्ट्राइक रेंज थोड़ी सी याद नहीं, धनुष की 350 किलोमीटर है, सरफेस टू सरफेस है। इट इज अ नेवल वेरिएंट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड पृथ्वी मिसाइल, सिंगल स्टेज लिक्विड। पृथ्वी का वर्जन है मतलब
लिक्विड प्रोपेल्ड होगा। ठीक है, पृथ्वी में हम लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं, पृथ्वी का वर्जन ही है धनुष, तो इसमें भी लिक्विड प्रोपेल्ड होगा। धनुष और पृथ्वी में बस इतने डिफरेंसेस हैं, शिप से लॉन्च होगी और सिंगल स्टेज। ठीक है, अब हमने अटैक तो बहुत कर लिया, अब अटैक दूसरा आता है डिफेंस। ठीक है, तो डिफेंस का मेन पॉइंट क्या है, डिफेंस। तो हमें डिफेंड भी करना होगा, तो उसके लिए क्या है, डीआरडीओ का 2 स्टेज प्रोग्राम। अब इसके लिए अभी हमने रिसेंटली सुना था कि रिसेंटली वी एक्वायर्ड S-400 ट्रायम्फ फ्रॉम रशिया। ठीक है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था ट्रायम्फ। ठीक है, वो तो चलो इम्पोर्टेड हो गया, बस इंडिजीनियस हमें क्या कर रहे हैं, इंडिजीनियसली वी हैव मल्टी लेयर्ड शील्ड अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अटैक्स, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल। तो पृथ्वी का मेन ये यूज है, बिकॉज पृथ्वी का एडवांटेज अभी मैंने क्या बताया था, मिड एयर इट कैन बी मैन्यूवर्ड। If it can be maneuvered mid-air, it means it can be used for defense. So this can intercept and destroy missiles at exo-atmospheric altitudes of 50 to 180 kilometers. तो जब हम एयर डिफेंस अपनी डिफेंस की बात करेंगे तो 2 स्टेजेस आते हैं डिफेंस में। एक ये कि आउटसाइड द एटमॉस्फेयर हम डिफेंड कर लें, मिसाइल लॉन्च हुआ उसको डिटेक्ट करें रडार के थ्रू, एंड आउटसाइड द एटमॉस्फेयर हम डिटेक्ट कर लें। अब वो फेल हो जाता है तो हमें एंडो एटमॉस्फेयर भी चाहिए होगा, विद इन 25 to 30 किलोमीटर। अब सरफेस के पास ही हम इंटरसेप्ट करेंगे तो फिर वो अपना इंटेंडेड जो भी डैमेज है वो तो क्रिएट करेगा ही। सो इसलिए 2 स्टेजेस, मतलब कि एक तो आउटर एटमॉस्फेयर में 50 to 180 किलोमीटर की रेंज में, and दूसरा इनर एंडो एटमॉस्फेयर में 30 to 50 किलोमीटर की रेंज में हमें इंटरसेप्ट करनी होगी मिसाइल। ठीक है, इसलिए 2 स्टेजेस हैं। तो जो पहली स्टेज है आउटर एटमॉस्फेयर में, उसके लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, this which can intercept 50 to 180 kilometers। एंड यही जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, पृथ्वी के बारे में देखो, हमने 2 चीजें देखी। पृथ्वी व्हेन यूज्ड इन द शिप्स, तो उसका नाम क्या हो जाता है, धनुष। ठीक है, अब हम उसे डिफेंस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, मिसाइल डिफेंस में, तो इसका नाम हो गया प्रद्युम्न। ओके, सेम मिसाइल प्रोग्राम्स है बट डेवलप्ड फॉर 2 डिफरेंट रीजंस, एक शिप के लिए और एक दूसरा एयर डिफेंस के लिए। तो इसका नाम, बस नाम बदल गया है, क्वालिटी सेम रहेगी। प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर इज गोइंग टू रिप्लेस द पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस को ही मॉडिफाई करके प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर बना दिया। अब सेकंड स्टेज जो है अंडर डेवलपमेंट, वो है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। एडवांस में क्या होगा, क्या हम इनर एटमोसफेयर में यानी एंडो एटमोसफेयर में करेंगे, विच हैज एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 15 to 40 किलोमीटर। ठीक है, उसके लिए हम कौन से यूज कर रहे हैं मिसाइल, बेसिकली इंडिजिनस जो है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, अभी हमने सरफेस टू एयर उतने देर में एक ही देखी, सरफेस टू सरफेस हमने बहुत सारी देख ली। ठीक है, ब्रह्मोस एयर टू एयर सारी कैपेबिलिटीज थी, एयर टू एयर भी थी, बट जो सरफेस टू एयर जो देखी है वो है आकाश। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंड करना मुश्किल है आउटर एटमोसफेयर से, जब एंटर करेगी, जब तक राडार डिटेक्ट करेगा। तो डिफेंस जो है मोस्टली उसके लिए डेवलप करते हैं, बिकॉज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर लॉन्च होती है, ठीक है, यूएस जिनके पास 9,000 किलोमीटर की भी रेंज है, या चाइना, चाइना उसी रेंज में 9,000 10,000 किलोमीटर की रेंज है, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं इंडिया पे, तो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए इन दोनों स्टेजेस पे। फर्स्ट स्टेज पे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या फिर पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, ये उसे टैकल करेगा। सेकंड स्टेज पे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, जिसमें कि एक है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, अब सेकंड स्टेज इज अंडर डेवलपमेंट। द सेकंड फेज ऑफ द प्रोग्राम फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम्स लाइक यूएस। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था, थर्ड थिएटर है हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम which can neutralize intermediate range ballistic missiles। ठीक है, डीआरडीओ एस प्लान एक AD-1 और यही एयर डिफेंस 1 एयर डिफेंस 2 इन फेज 2 ऑफ द मिसाइल शीट डेवलपमेंट। तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इट इज अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तब तक हमारे पास क्या है, वी हैव इंपोर्टेड S-400 ट्रायम्फ फ्रॉम रशिया, एयर डिफेंस के लिए हमने इसे इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो उसमें से 5
5 शायद हमने, हाँ 5 किए थे, उसमें से 3 अभी तक आ चुके हैं, तो रशिया यूक्रेन वॉर के चक्कर में बाकी तो पेंडिंग है। तो S-400 ट्रायम्फ। तो जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो मिसाइल हो जाती है सरफेस टू एयर। ठीक है, मिसाइल तो एयर में ही हिट करेंगे, अगर सरफेस पे हिट करेंगे तो डैमेज तो होगा ही। तो मोबाइल सरफेस टू एयर। और इसका एडवांटेज मोस्टली क्या है कि ऐसा नहीं कि एक जगह फिक्स रहेगा कि हमें एक इसके लिए बिल्डिंग बनानी है या एक एरिया बनाना है वहीं पे फिक्स होगा। इट इज अ मोबाइल surface to air missile system developed by Russia, capable of intercepting and destroying various aerial targets such as aircraft, drones, cruise missiles and ballistic missiles. All the four categories है ना, सबको ये इंटरसेप्ट कर सकता है। इट इज अ वेरी एडवांटेजेस फॉर इंडियन सिक्योरिटी। इट हैज अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर्स, तो एक्सो एटमॉस्फेयर से भी बाहर तक ये डिपेंड कर सकता है। एंड एल्टीट्यूड, अभी देखो जैसे जैसे हम टैक्टिकल वॉर्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अगर टैक्टिकल या इंडिया चाइना के बीच में, तो टैक्टिकल यानी कि शॉर्ट रेंज, शॉर्ट एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर के इन एंडो एटमोसफेयर में भी ये उन्हें डिफेंड कर सकता है। तो ये S-400 का एडवांटेज। ठीक है, अब सैम तो समझ गए, सैम जब भी हम सैम की बात करें, सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें, ठीक है, उसी में क्या है, मॉडर्न लॉन्ग रेंज सैम। तो इसे जो यूएस ने अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है हार्ड, उससे भी एडवांस माना जाता है। इंडिया now has a capability, limited amounts में, but capability which has a defense system much more advanced than US थर्ड। ठीक है, तो इसलिए इंडियन आर्मी को एक हाई रैंक में प्लेस कर। तो ये 2018-19 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और 3 हैव अराइव्ड, 2 आर पेंडिंग। ठीक है, अब इसी में जैसे ये तो S-400 ट्रायम्फ था, अब इंडिया का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 2028-29 तक, कि हमें पूरा एयर डिफेंस अपना मजबूत करना है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुश। ठीक है, इट इज लेड बाय डीआरडीओ एंड इट aims to develop long range air defense system by 2028-29। अब ये क्या, इसकी कैपेबिलिटीज क्या होंगी, डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एनिमी प्रोजेक्टाइल्स एंड आर्मर इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स एट लॉन्ग रेंज। तो अभी तक जो प्रोग्राम थे उसमें हम सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही इंटरसेप्ट कर रहे थे, बट द फ्यूचर प्रोग्राम विच इज नोन एज पुश प्रोग्राम, which will also intercept cruise missiles, stealth fighter jets and drones। ठीक है, ये इंडिया का इंडिजिनस प्रोग्राम का प्रोजेक्ट पुश। तो तीन टाइप के होंगे इंटरसेप्टर डेफिनेटली, 150, 250 एंड 350, और सर्वेलेंस एंड फायर कंट्रोल रडार। तो किसी भी सर उसका डिफेंस का मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्वेलेंस एंड रडार। ठीक है, बिकॉज जब हम डिटेक्ट करेंगे तभी तो डिफेंड कर पाएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंटली क्या होंगे कि सेपरेट लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और रडार्स होंगे, इसके लिए सेपरेटली प्रोजेक्ट पुश के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू राइवल द इफेक्टिवनेस ऑफ द नोन S-400 एंड द आयरन डोम सिस्टम ऑफ इजराइल। ओके, तो ये जो डिफेंस सिस्टम्स हैं इनके भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में, एक और क्वेश्चन ऐसे भी था कि हाँ डिफेंस सिस्टम जो के नाम पूछे गए थे, इजराइल के, यूएस के, रशिया के। ठीक है, तो उसमें भी रैंडम एक जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसको हम आयरन डोम, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उन्हीं के डिफेंस सिस्टम से नाम याद रखें, बाकी नहीं। ओके, तो ये हमने मिसाइल सिस्टम छोड़े और डिफेंस सिस्टम छोड़े। हमने कवर किया अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, प्रहार, प्रलय, धनुष, और फिर उसके बाद डिफेंस सिस्टम्स में आए। डिफेंस सिस्टम्स में पृथ्वी एयर इंटरसेप्टर्स, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम के बाद S-400 ट्रायम्फ जो हमने इंपोर्ट किए हैं, और जो फ्यूचर मिशन है वो है प्रोजेक्ट कुश। ठीक है, इतना हम डिफेंस में। इसके बाद पढ़ेंगे जो हमारी नेवल फ्रिगेट्स हैं और हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं। ठीक है, दो चीजें ये डिफेंस में बचती है। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे।
ये आज के लेक्चर्स के लिए इतना था। अब जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हो। हाँ यशोदा। सर, साइंस एंड टेक में कुछ ऐसा पैटर्न होता है क्या? जैसे यूपीएससी में पॉलिटी में होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं, वहां वो फंसाते हैं। और इवन इन्वायरमेंट में मिनिस्ट्री स्वैप कर देते हैं। क्योंकि इसमें रेंज मिसाइल की थोड़ी बहुत ये लोग बढ़ा कम कर देते हैं, वहां पे थोड़ी ये लोग मिस्टेक्स करते हैं। बट उसके अलावा कुछ ऐसे कंसिस्टेंट पैटर्न होता है? पैटर्न ऐसा कोई कंसिस्टेंट पैटर्न, एक तरह का पैटर्न ऐसा होता है कि करंट में अगर कोई मिसाइल डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे। नॉट जस्ट इंडियन, ठीक है, अगर फॉरेन कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके कंपैरेटिव अगर हमारे पास कुछ है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर चाइना ने कोई मिसाइल लॉन्च की, हमने उसमें कोई की नहीं, हमने हो सकता है उसे डेवलप किया 2019 में, तो पैटर्न ऐसा होता है कि चाइना से कंपैरेबल जो हमारे पास मिसाइल है हो सकता है वो पूछ सकते हैं। ओके। दूसरा ये कि रेंज में, इसीलिए मैंने इनको कैटेगराइज इसलिए किया है इसमें कि हम्म। बैलिस्टिक मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और इनकी रेंज पृथ्वी मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट है, इनकी डिटेल्स है। वैसे डिटेल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं पूछते कि ये सॉलिड प्रोपेलेंट है या कौन सा इंजन है। मोस्टली जो एकदम ही न्यूज में नया हो कि नई कोई टेक्नोलॉजी अगर यूज हुई है तो पूछते हैं, बट ये इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रहेंगे तो अगर वो क्वेश्चन कोई ऐसा पूछते हैं जो तुमने नहीं पढ़ा है, बट अगर इस प्रोग्राम का नॉलेज है तुम्हें, इस प्रोग्राम में कौन सी मिसाइल्स डेवलप होती है, ठीक है, अग्नि सीरीज में अगर नेक्स्ट मान लीजिए कि अग्नि 6, तो ये तुम्हारे माइंड में रहेगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो ऑप्शन में अगर बैलिस्टिक मिसाइल आता है तो यू कैन मार्क दैट आंसर, ठीक है। दूसरा कि सरफेस टू सरफेस होती है, सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, ऐसी कोई भी चीज, रैंडम चीज वो पूछ सकते हैं। अगर वो पूछेंगे तो हमारे, इससे क्या है कि क्लास हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब वो नई चीजें पूछेंगे तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन मेक अ गेस जो कि इन्फॉर्म गेस होगा, तो इन्फॉर्म गेस इज बेटर देन अ रैंडम, ठीक है। तो इसलिए मैं वो रट्टा वाला काम नहीं कर रहा कि हाँ करंट में तो पढ़ोगे, देखो करंट में जो चीजें वो पढ़ोगे, बट इससे क्या होता है कि तुम्हारी गेस करने की जो पावर है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो गई। जबकि साइंस एंड टेक में ऐसा होता है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मोस्टली ये होता है कि जो करंट न्यूज आई उससे पढ़ी, याद किया, खत्म। अब इससे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी कि ये चीजें होती क्या है, कोई नया प्रोग्राम भी आएगा, कोई नया क्वेश्चन आता है जो तुमने नहीं पढ़ा है, तो भी इससे डिड्यूस कर सकते हो ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ये चीज। बाकी डिफेंस में यही है कि डिफेंस में मोस्टली कंपटीशन चलता है। मेनली क्या है कि जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी आपकी एनालिटिकल स्किल्स देखती है, ऐसे कि आप इंडिया की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी जब नहीं चलेगी तो डिफेंस, ठीक है, तो डिफेंस में हम कितना केपेबल है, डिफेंस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। जब तक आप केपेबल नहीं होंगे तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं, राइट। तो कैपेबिलिटीज इसीलिए चेक करते हैं कि आपको पता है कि हम कितने केपेबल हैं, हम जो भी डिफेंस में डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ही हम फॉरेन फोरम से बोल पा रहे हैं। अगर हमारा डिफेंस मजबूत नहीं होगा तो नो वन विल लिसन, ठीक है। इकोनॉमी और डिफेंस दोनों दो 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 चीजें ही होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है साइंस एंड टेक का, इसीलिए ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? काव्य, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ आई एम टीचिंग इन हिंदी? काव्य? So no, sir, I'm able to understand. ओके। Yeah. ओके। I was thinking about it for a long time. I thought, okay, maybe I'm just making it easy for everyone and making it difficult for you. But if it's understandable, then it's okay. ठीक है। चलो फिर, क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो फिर नेक्स्ट टाइम देख, नेक्स्ट यही हो, आगे के प्रोसेस बता दे। कुछ चीजें बची हैं, नेवल फ्रिगेट्स जो है, शिप्स है, और जो एरोप्लेन, ठीक है, हमारे जेट्स बचे हैं। हम मिलिट्री की बात अभी कर ली, मिसाइल सिस्टम्स की बात कर ली, नेक्स्ट नेवी और
एयरफोर्स की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, वो बात कर लेंगे तो हमारा डिफेंस वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। स्पेस और डिफेंस प्लस जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, कोई नई मिसाइल, कोई नई एयर डिफेंस सिस्टम, कोई नई डील्स, रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा तो कुछ कोई भी नया चीज कुछ होगी तो मैं इंट्रोड्यूस उसमें कर दूंगा, एक एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं उस पे आएंगे। उसमें शायद सबको प्रॉब्लम होती है, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बायोलॉजी सेक्शन, जेनेटिक्स, सेल थेरेपीज, मेडिसिन, हेल्थ, ठीक है। इसमें मैं ट्राई ये करूंगा, अगर हम बेसिक्स में अगर पूरी बुक हो जाती, पूरी बुक की एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ये सारी तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं, इतना सारा हम पढ़ेंगे तो बाकी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हर सेक्शन से, कि जीन थेरेपीज, ठीक है, मेडिसिन से, जेनेटिक्स मोस्टली, उस एक उसमें नए डेवलपमेंट्स, उसके बाद नई डिसीजेस, ठीक है, उनके काउंटर एक्शन, फार्मेसी से रिलेटेड कुछ है तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती, और कोई नई स्पीशीज के थ्रू कोई डेवलपमेंट हुआ इन्वायरमेंट के, ठीक है, न्यू स्पीशीज के डिस्कवरी, ये देखेंगे। और उनका प्रिजर्वेशन के लिए जो चीजें हो रही हैं वो, ठीक है। तो ये साइंस इंटेक के प्लस, क्योंकि ये कोलैबोरेट करता ही है, ठीक है, ओवरलैप करता है। जब ओवरलैप करेगा तो फिर साइंस इंटेक और एनवायरमेंट थोड़ा सा बीच में मर्ज हो जाता है, तो हम उसी एंगल से दोनों को देखेंगे तो थोड़ा सा एनवायरमेंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये होंगे नेक्स्ट, ठीक है। चलो then, सब लोग गुड नाइट मेरी तरफ से।